Myself, Dr. Ramkumar from Government Saranpur. Girls Degree College, Saharanpur. Saranpur. And from Tamil Nadu or Kerala, anyone from Tamil Nadu or Kerala? Yes, from Tamil Nadu, sir. Okay. So in my department, we have a student from Tamil Nadu. And Yes, sir, Tamil Nadu. one of my students is in Coimbatore. He's working in Coimbatore. He's from Tamil Nadu. So we have three students from Tamil Nadu. We have a student from Kerala. So in my department, it is just like a mini India, representing Tripura, Assam, Bengal, UP, Uttarakhand, Delhi, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. So should I start? Everybody has joined, I think. So my topic for discussion is environmental pollution and how it affects health. So I'm working here in the Department of Community Medicine for the past 25 years. So some of them are most two of them are from medical background or who have studied biology, but the other participants may be from different streams. So for them, just have a look what is these simple terms like epidemiological triad. What is epidemiology? Epidemiology is the study of distribution and determinants of health and application of the knowledge for prevention and control of diseases. This is epidemiology. Epidemiology is a very common term used in public health, and we have epidemiological studies. If any epidemic or any outbreak happens, we investigate considering the epidemiology of the disease. So epidemiological triad means three, having three components. So epidemiology is the distribution of determinants, study of distribution of determinants, and The slides are not changing. yeah, I'll change it. So distribution in terms of place, distribution in terms of time, and distribution in terms of person. And determinants like causative organism, it may be some bacteriological organisms, bacterial, fungal, viral, or other like the factors inside the host, inside the person, or environmental. So I'll be discussing the environmental component later on. So this is called medical geography. That's why I asked from which state you belong. Like some diseases, distribution in terms of places. So some diseases are common in northern part of India, some in southern part of India, some in coastal part of India, some in northeastern states, some in Bengal. This is called medical geography. The typical example of medical geography is the occurrence of Japanese encephalitis. It is localized in and around Gorakhpur or eastern part of India. Why? Because there are certain favorable environmental conditions. Though the vector is there, vector Culex mosquito is present in Gorakhpur, in Aligarh, in Delhi, but why Japanese encephalitis is not occurring in Aligarh or in southern parts of India? Because there are certain environmental factors also play important role. So this is distribution in terms of place. Distribution in terms of time. Some diseases are common in winters, some are common in summer, like gastroenteritis and cholera, gastroenteritis, diarrhea, common in summer and rainy season. Then vector-borne diseases, dengue in rainy season, and measles or respiratory infections are common in winters. Why? Because in winters there is overcrowding in the room. One single blanket is shared by 2, 3, or 4 to 5 people, or especially the children, and they are likely to get the infection. Similarly, skin diseases are common in winters because of the close proximity or overcrowding. So this is in terms of time. Some are common in winter, some in in summer, some in rainy season. And distribution in terms of person who are affected. Osteoarthritis is common in elderly person. Hypertension, diabetes, mainly in 40 plus.
diarrhea diseases, respiratory infections, skin infections are common in children. Similarly, some diseases are common in males, like sexually transmitted diseases are more common in males, while the manifestations are severe in females. So this is distribution in terms of person who are affected. So there is this is epidemiology, distribution, the study of distribution and determinants of health, and application of this knowledge for prevention and control of diseases. So the epidemiological word has been derived from epidemiology. In epidemiology, we generally ask 7 questions. What is the event? Why it has happened? How it has happened? Where it has happened? When it has happened? And how it has happened? So 6 to 7 W's are involved in epidemiology. So we investigate the cases in terms of these queries. So epidemiological triad is a triangle where we have 3 components: agent, host, and environment. Agent, host, and environment, and it is believed that the equilibrium, some of participants from Hindi background. So So many participants from Hindi background, sir. So मैं थोड़ा बहुत मैं हिंदी में बताऊँ. Sometimes it may be difficult for the people from southern parts of India, but I'll elaborate in Hindi also. So Slides are not changing. environment, agent, host, and environment में एक balance होता है. When this balance or equilibrium is disturbed, the balance is maintained between agent and host. Agent और host के बीच में एक equilibrium, एक संतुलन होता है. एजेंट एनवायरनमेंट के बीच में एक संतुलन होता है, एंड होस्ट एंड एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन. इन तीनों में आपस में संतुलन होता है. व्हेन दिस इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जब ये संतुलन गड़बड़ होता है तो डिजीज प्रोसेस स्टार्ट, बीमारी पैदा होती है. सो वन ऑफ द कंपोनेंट इज द एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है. इट मे बी क्लासिफाइड, इसको वातावरण को हम 2 हिस्सों में डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल और मैक्रो. मैक्रो मींस बिगर वन, एक्सटर्नल मींस बाहरी. हमारे बॉडी के अराउंड जो एनवायरनमेंट है, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और मैक्रो द बिगर एनवायरनमेंट. एंड इंटरनल, आंतरिक, यानी कि जो बॉडी के अंदर है, इनसाइड द बॉडी, एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी, इट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इंटरनल एनवायरनमेंट comprises the functioning of organs, release of hormones, the levels of enzymes, or other chemicals in the body. And external environment is the, so I'll be discussing the external environment, not internal environment. External और जो बाहरी है या जो बड़ा वाला environment है, उसको हम discuss कर रहे हैं. This is called micro environment. Here we can classify into 3 broad categories: physical environment, biological environment, and social environment. Physical is bhautiki, biological is jaivik, and samajik. Physical environment in which we are living, or the environment around us, is the physical environment, which the components are water, air, soil, housing conditions, waste, radiation. It's not moving. Sorry, sir. Slides Slide is are not not changing. moving, sir. PPT is not moving, sir. Okay. Okay, sir. Yeah, Now yes, it's sir, moving. Yes, Yes, now it is. Now it is moving, sir. now it's moving. Now it is moving. Yes, sir. Yes, sir. Moving. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. इसको मैं- अगर हम इसको ऐसा कर रहे हैं तो अब दिख रही है. सही है. Yes, sir. दिख रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Present कर Yes, दीजिए, sir. sir. Slide show में चले जाइए ना. ठीक है. So housing conditions, waste, radiation, noise, and other factors. In biological, we have bacteria, viruses, fungi, insects, rodents, animals, parasites, and other. In social factors also play a very important. It is very clear. If water is polluted, if air is polluted, if soil is contaminated, if housing conditions are poor, अगर वाटर जो दूषित है, एयर पोल्यूशन है,
सॉइल दूषित है, हाउसिंग कंडीशन जो है वो बहुत ही पुअर है, वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर नहीं है, रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, नॉइज ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और अदर, ये क्लियर है। बैक्टीरिया सिमिलरली, बैक्टीरिया है तो डिजीज होगी, बैक्टीरियल डिजीज, डिसेंट्री, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस और अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सब बैक्टीरिया से हो रही हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, लेप्रेसी। देन वायरसेस है, इसमें HIV एड्स है, हेपेटाइटिस B, C, A, B, C, D, E, फंगाई है, कैंडिडा इन्फेक्शंस है, इंसेक्ट्स के थ्रू बहुत सी डिजीजेस होती हैं, रोडेंट्स के थ्रू लाइक प्लेग होती है, लेप्टोस्पायरोसिस होती है इन महाराष्ट्र, एनीवन फ्रॉम महाराष्ट्र, इन लातूर and other adjoining areas the leptospirosis is common because of the presence of rodents. प्लेग भी रोडेंट से होता था। देन एनिमल्स हैं जो हमारे पेट एनिमल्स होते हैं उनसे भी होती है, रेबीज हो जाती है, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, अगर हम मिल्क पी ले किसी भी एनिमल का विदाउट बॉइलिंग इट, सो इफ द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस तो बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है मिल्क के थ्रू। पैरासाइट्स होते हैं, आंतों में रहते हैं, बॉडी के ऊपर रहते हैं, स्केबीज का है और हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हैं, वॉर्म्स हैं पेट में। बट दिस इज द नेग्लेक्टेड पार्ट, we are focused on these two, physical and biological, but social factors are also play very important role। जो हमारे रीत रिवाज हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारी हैबिट्स हैं, हमारी इनकम also play important role। Those who are from lower socioeconomic group, they are more likely to get the disease। Occupation है, those who are working in industries, noise pollution की वजह से they are likely to have hearing impairment or hearing loss। Religion also play important role। I'll discuss caste and other factors। Customs, जो हमारे कस्टम होते हैं, हमारा खान पान होता है, उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं। ऑक्यूपेशन बताई दिया। रिलीजन में लाइक कार्सिनोमा सर्विक्स इज लीस्ट कॉमन इन मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सर्कमसिजन इन मेल्स। सिमिलरली डाइटरी हैबिट्स है, कास्ट है। तो मेनली आई बीन इन गोड्डा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड में हमने काम किया गोड्डा डिस्ट्रिक्ट। हाउ द सोशल फैक्टर्स affect health. I will give you the example which I have seen there while doing a Ministry of Health and Family Welfare study in Godda, Jharkhand. Very beautiful place, full of hilly areas, beautiful hilly areas, and the coal mines, famous for coal mines also. वहाँ पे क्या होता है? There are the Godda is mainly the tribal area. Tribal वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, मरांडी, मुर्मू, हंसदा, सोरेन, मंडल, मुंडा, नॉट मंडल, मुंडा, ये वहां पे रहते हैं। When we move in the tribal areas, जब मैं ट्राइबल एरिया में गया, it was very difficult to find a male member of 50 plus, aged 50 plus. Why? There was a single social factors that claim the lives of males around 40 to 50 years। क्या होता था? ताड़ी पीते थे। ताड़ी वो बनाते हैं, फीमेल्स बनाती हैं। फीमेल्स हटिया में हटिया इस उसको मार्केट बोलते हैं, जो लोकल एरियाज में लगती है फ्रीक्वेंटली, या वंस वीकली, ट्वाइस वीकली। तो वो ताड़ी पी के, लोकली मेड लिकर पी के वो मर जाते हैं 50 years। So mainly all were musmus। You have to write down the word musmus। Musmus means widow। When we used to fill the proforma, जब मैं proforma भरता था तो it is mandatory to write the Fulmati, Marandi, musmus। Musmus means widow। So 70 years तक की, 80 years तक की females वहाँ पे थी, but males नहीं थे, and there was only a single social factor that claimed the lives of these economically productive age group। वो liquor था, country made liquor। Similarly, customs and habits से we are working in a urban slums in Aligarh। Some 15 years back, it was very difficult to persuade, or it was very difficult to ask the people to use स्टरलाइज ब्लेड। वहां पर अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए, डिलीवरी के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए वो ब्लेड नहीं यूज करते थे, बिकॉज द यूज ऑफ ब्लेड वाज नॉट इन देयर कस्टम्स एंड कल्चर और हैबिट।
They were using a broken piece of cup. एक कप को पहले वो तोड़ते थे, costing 5 rupees, 4 to 5 rupees. एक कप को तोड़ते थे, उसके टुकड़े से they used to cut the umbilical cord, making the child to vulnerable to number of infections and especially the tetanus, neonatal tetanus. Though we are giving two tetanus toxoid immunization shots to pregnant mothers, but their chances of getting infection. So उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो बहस करते थे कि देखो ये बच्चे खड़े हैं, इनको सबको भी कप से काटा गया है, umbilical cord, इनका broken piece of cup was used to cut the umbilical cord, so they are all healthy. But now the things have changed. इसको कहते हैं social marketing. When social marketing में एक ऐसा आता है कि पहले फैमिली प्लानिंग के लिए जो लोग जाते थे 70s में 70-75 के राउंड, तो उनको गांव में मारते थे, दौड़ाते थे, पीटते थे. But now the people, they are coming to us to get the family planning services. This is social marketing of family planning services. Similarly, अब वहां पर umbilical cord को blade से काटते हैं. Just blade is costing just 1 rupee, but is using this blade ना use करके they were using a broken piece of cup. This is culture, customs and culture. So mostly man is the culprit for this environmental pollution. And the activities which are responsible, जो activities हैं industrialization, urbanization and development of jhuggi-jhopli clusters, urban slums where the living conditions are very poor or horrible. They don't have access to safe water. They don't have access to sanitary disposal of waste. Sanitary latrines are not there. And because of the, and you know, the migration, this is happening because of migration. People are migrating from remote areas to urban areas, leading to development of or emergence of jhuggi-jhopli clusters or poor housing conditions. But migration is necessary for development. अभी जो वर्ल्ड में जहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, यही वर्कर्स जो रिमोट से आते हैं, इंटीरियर से आते हैं, यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. आज गुड़गांव, नोएडा जो है, ये सब वर्कर्स हैं जो बिहार और यूपी, बंगाल और दूसरे स्टेट से आए हैं, वहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सिमिलरली मैं बाहर भी गया, वहाँ पर भी देखा हमारे इंडियन जो है वर्कर्स, वो आर कंट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, सब कहीं पर यही लोग काम कर रहे हैं. बट the disadvantage or the negative side is right the development of jhuggi-jhopli clusters and urban slums. In developing countries, much of ill health conditions are attributed to environmental insanitation, especially non-available safe drinking water. अभी वर्ल्ड में वही कंट्री डेवलप्ड हैं जहाँ पर पब्लिक हेल्थ एडवांस हो गई है. One of the component of Sir, sorry to interrupt, sir. Your slides are not moving. Please look into the matter, sir. moving. Slides are not moving, sir. Now it has moved or not? No, sir, no. No, sir. No, sir. Now it's moving, sir. Now Oh, it's yes. Sir, Okay, sir, now it's moving, sir. moving. It's moving, sir. So I'll put it in this mode only. Don't display, है ना? इसी पे करेंगे हम. तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है जो है वो अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर दे दें तो वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ हेल्थ कंडीशंस where which are contributed, which is caused by the supply of unsafe drinking water. Unsafe drinking water क्या होता है? There are 4 criteria. 4 criteria. If these 4 criteria are met, we will call a water sample safe. First is it should be free from pathogenic organism. Pathogenic means disease producing. So bacteria are always there. Bacteria पानी में होते हैं, but it should not be pathogenic. Disease producing नहीं होना चाहिए, और the quantity इतनी कम हो कि वो disease produce ना करें. So one is it should be free from pathogenic organism. It should be free from toxic chemical substances. Always there are toxic chemical substances, but always there are chemical substances, but it should not be toxic. Chemical substances पानी में होते हैं,
तमाम तरह के आयरन और आर्सेनिक, फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड सभी कुछ होता है उसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सब कुछ होता है, बट इट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। जो लिमिट है उसके ऊपर जाएगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस। 3 इट शुड हैव गुड टेस्ट। अगर टेस्ट अच्छा होगा तो इनटेक प्रॉपर होगी, अदरवाइज द इनटेक विल बी रिड्यूस। एक आदमी को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। बच्चों में जो पहले पहले जब ये आपका फिल्टर लगाया हम लोगों ने, सो फिल्टर लगते ही टेस्ट चेंज, हम लोग एक्सपोज नहीं थे, तो अवर इनटेक वाज पुअर व्हेन वी टेक दिस आरओ वाटर। बच्चों ने पीना बंद कर दिया, बट लेटर ऑन एक्लिमेटाइज होगा, धीरे धीरे आदत पड़ गई। So it should have good taste so that the adequate consumption is maintained. This 4th is it can be used for domestic purposes. अब उसके लिए ऐसा इसमें ना हो, इतनी हार्डनेस ना हो कि हम साबुन लगाते जाएं और हमारे कपड़े ही साफ ना हो, फोम ना बने, लादर ना बने, झाग ना बने। तो 4 क्राइटेरिया। तो अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर दें पब्लिक को, कलकत्ता है डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग 2 वाटर लाइन्स। कलकत्ता एक ऐसा शहर है इंडिया में, अंग्रेजों ने वहां पर दो वाटर सप्लाई, अभी पता नहीं अभी है कि नहीं, लेकिन वहां पर 2 वाटर सप्लाई लाइन थी, 1 फॉर ड्रिंकिंग एंड 1 फॉर अदर पर्पजेस। बट दी एडवांटेज इज दैट जो हमारा टॉयलेट में फ्लश में पानी जा रहा है उसको भी हम क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हैं। इट इज क्लोरिनेटेड वाटर सप्लाइड बाय जल निगम, नगर निगम, म्यूनिसिपैलिटी, जबकि वहां पर उसकी जरूरत नहीं है। जो वॉश कर रहे हैं, कपड़े कर रहे हैं, उसको अभी केमिकली ट्रीटेड हमें पानी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए। लेकिन इट इज ए कॉस्टली अफेयर अगर हम 2 अलग अलग लाइन बिछाएंगे। बट कलकत्ता हैज डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग 2 वाटर सप्लाई लाइन, 1 फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर कंजम्पशन, और सेकेंड इज फॉर अदर पर्पसेस, वॉशिंग के लिए, बेदिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए वो। बट disadvantage of having 2 lines is that there may be confusion। कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, जो पानी हमको कपड़े धोने के लिए किया गया उसको कुछ पी सकता है, और जब पी लेगा तो सोचिए कि क्या होगा। इट इज फुल ऑफ बैक्टीरिया, इट इज फुल ऑफ अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस, तो एक हेल्थ इश्यूज क्रिएट होंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर रिलाइंग ऑन सिंगल लाइन। अच्छा, यहाँ पर भी बताना चाहें कि अगर एक लाइन, एक ट्रेंच खुद रही है, एक नाले को खोदा गया है, इसमें वी हैव टू ले डाउन 2 पाइपलाइंस, 1 फॉर वाटर सप्लाई एंड 1 फॉर सीवर लाइन। सो इट इज रिकमेंडेड। कहते हैं ना, सिंपल थिंग्स मेक डिफरेंस। खाली इंटरवेंशन चेंज करना है, इंटरवेंशन चेंज करना है। अभी एक थोड़ा सा एक जोक तो नहीं है, एक बस बनाया हुआ किस्सा, वो भी सुन लीजिए। एक आदमी था, ही वाज वेरी मच डिस्टर्ब विद द नेबर्स डॉग। नेबर्स के डॉग से ही वाज वेरी मच डिस्टर्ब। द डॉग यूज्ड टू बार्क होल नाइट, पूरी रात वो भौंकता था। So he discussed this issue with his friend. His friend advised him to give 1 sleeping pill or diazepam to the dog in roti, mixed with roti, and dog will sleep and you will enjoy your sleep. So उन्होंने एक टैबलेट डॉग को दे दी। The next day, he met with his friend and he asked, everything is all right? Night was peaceful? You have a peaceful sleep, restless sleep? So he said, no, the whole night the dog barked. उसने पूरी रात वो भौंकता रहा कुत्ता। So it is actually, there is a difference in the dose adjustment. For human beings, 1 tablet is sufficient. I think for animals you have to give 2 tablets. Animal को आपको 2 tablet diazepam की देनी होगी। So he gave 2 tablets mixed with roti or some food items. And the next day again, he met with his friend and he asked, everything is all right, what happened? तो उसने कहा कि नहीं, आज भी वो ऐसे ही भौंकता रहा। The dog barked whole night in spite of I have given 2 tablets to the dog. Then the friend advised him to take, today you will try and you should take 1 tablet and then see what will happen. So the next morning he met with his friend and he said that this night the dog was sleeping. He didn't bark. So
कहते हैं ना इंटरवेंशन को चेंज करना था, रादर गिविंग 2 tablets to dog, it is better to take 1 tablet by the person himself. Similarly यहाँ पर भी ऐसे ही है, इंटरवेंशन वही है, थोड़ा सा चेंज करना है। अभी सीवर लाइन और वाटर सप्लाई लाइन को डालना है। अगर हमको नॉलेज नहीं है हाउ these are transmitted and what will happen if water is contaminated, उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपल इंस्ट्रक्शन ये है कि वाटर सप्लाई लाइन will be laid at the upper side और सीवर लाइन लोअर साइड। क्योंकि बस ये अगर इसको उलट दिया, सीवर लाइन को ऊपर कर दिया, वाटर सप्लाई लाइन को नीचे कर दिया, तो वहां से सीवर से लीकेज होगा और इट मे बी सोक्ड और वैक्यूम में बी क्रिएटेड एंड इट इज मिक्स्ड विद द वाटर सप्लाई लाइन और लीडिंग टू डायरेक्ट डिजीज। सो सिंपल थिंग्स मेक डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के 4 क्राइटेरिया हो गए। People don't in developing countries don't have access to environmental sanitation services. Sanitary latrines नहीं होती हैं। Scarcity of facilities for safe disposal of excreta and waste leading to contamination of groundwater with pathogenic organisms and toxic chemical substances. This is the condition in Aligarh. In some of the areas where we are working in a UNICEF project, we were working in the UNICEF project. This is Bhutpura, waterlogging, full of filth. So no water is 100% pure except rainwater. It is said that rainwater is the purest form of water. जो rainwater है, वर्षा का जो पानी है, वो सबसे शुद्ध पानी है नेचर में, उससे शुद्ध कोई पानी नहीं है। इम्प्योरिटीज उसमें मिलावट होती हैं, गैसेस होती हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयोडीन, सल्फर। देन सस्पेंडेड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है, वहां पर क्ले है, मट्टी है, सिल्ट है, मड है। केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट released from the industries. It is taken to mainstream water stream and water is contaminated. Microorganism वहाँ पे होते ही हैं पानी में, and radiological substances जो especially those living in and around radiological establishment like power stations or where the radioactive mines are there, like in Jharsuguda, in Jharkhand, in some parts of Andhra Pradesh, Karnataka, where the radioactive mines are there. So people are exposed or the water is contaminated. और नहीं, यहाँ पर एक चीज याद करने की, one is contamination and one is pollution. These two terms are frequently used. Contamination is like contamination, like I may be infected with tuberculosis. हमें tuberculosis का infection है, but I am not disease. हमारे अंदर बैक्टीरिया होगा, लेकिन हमें बीमारी नहीं है. Similarly, contamination means if a single organism is present in water, अगर पानी में एक भी organism है, तो वो एक भी ऑर्गेनिज्म है, वो कंटामिनेशन कहलाएगा. बट दिस पोल्यूशन मीन्स इट बिकम्स ऑफेंसिव, वही क्रॉस द अपर परमिसिबल लिमिट. पोल्यूशन इज ऑलवेज ऑफेंसिव. कंटामिनेटेड मे और मे नॉट अफेक्ट हेल्थ, बट पोल्यूटेड ऑलवेज अफेक्ट हेल्थ. ये याद करने का है, कंटामिनेशन एंड पोल्यूशन. Sometimes safe water may be contaminated during supply and storage due to corrosion in pipes. हमने तो पानी को सेव कर दिया, उसको स्टोरेज किया, उसको फिल्टर किया, फिर क्लोरिनेशन कर दिया, बट ड्यूरिंग सप्लाई एंड स्टोरेज वो कंटामिनेट हो गया. corrosion in pipes, तो पाइप इतने पुराने पड़े हुए हैं, लीकिंग जॉइंट्स हैं. सेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ सीवर लाइन, अगर सीवर लाइन बहुत ज्यादा लीक हो गई है तो वो जो अपर जो सप्लाई वाटर सप्लाई लाइन है, इट अगेन इट मे बी कंटामिनेटेड. अगर पूरा वो आपका जो कैनाल है, चैनल है, टनल है, पूरी फुल हो गई है, तो वो सप्लाई लाइन. टचिंग द वाटर विद अनक्लीन हैंड्स एंड स्टोरेज इन अनक्लीन कंटेनर. पानी तो हमने साफ कर लिया और उसको फिर हमने जिस बर्तन में रखा वो साफ नहीं था, या उसको हमने निकालने का जो है उसमें हाथ डाल दिया, या अनक्लीन कोई यूटेंसिल यूज किया. इसीलिए कहते हैं पानी निकालने का पहले भी जब घड़े और सब यूज होते थे तो एक लंबा सा उसमें एक पीछे हैंडल होता था, उससे निकालते थे. द पर्पस वाज टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ वाटर थ्रू हैंड. फॉर असेसमेंट ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म. कोलिफॉर्म इसलिए कहते हैं, कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म हमारे आंतों में होते हैं. पानी में कोलिफॉर्म
मिलने का मतलब ये हो गया कि वाटर इज कंटामिनेटेड विथ फीकल मैटर, पानी में फीकल मैटर आया है, अदरवाइज कोलीफॉर्म उसमें आ नहीं सकता था। तो प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म इंडिकेट्स फीकल कंटामिनेशन। It includes other coliform organism, like one is the commonest is the E. coli, then non-fecal. There is no need to go in detail. For all practical purposes, it is assumed that all coliform organisms are of fecal origin. Fecal coliform organism जो होते हैं, coliform, इनको बता दिया कि ये आंतों में होते हैं और पानी में इनका मिलना जो है वो कंफर्म करता है कि ये फीकल मैटर इस पे आया, अनलेस प्रूव अदरवाइज है, या कोई और टेक्निक है उससे आपने पता किया कि ई कोलाई ये वहां से नहीं आया, कहीं और से इसमें ऐड हो गया। इसमें हम करते हैं वाटर क्वालिटी, बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर इज डन यूजिंग फीकल कोलीफॉर्म काउंट और मल्टीपल ट्यूब टेस्ट। इसमें कहते हैं इफ इट इज 0 to 10 it is accepted, 10 to 100 polluted, 100 to 1000 very polluted, and over 1000 grossly polluted। कुछ एरियाज में मोर देन 1000 भी अलीगढ़ में है। इसके लिए हम टेक्निक है कैसे करते हैं, उसको स्टेलाइज्ड बॉटल्स लेते हैं नेचुरल ग्लास से बनी हुई विद वाइड माउथ, इसलिए कि माउथ इसलिए उसका चौड़ा लिखते हैं ताकि वो टच ना करे उससे टैप से, और टैप को बीच में रख के उसमें पानी भरते हैं। अगर माउथ इज नैरो सो इट इज लाइकली टू टच द टैप, और जो बॉटल के आसपास पानी वो जो मार्जिन पे बैक्टीरिया होंगे दैट में गो इनसाइड। स्प्रिट स्वाब इज प्लेस ऑन द टैप, टैप के ऊपर, टैप भी लोहे की होना चाहिए, प्लास्टिक की नहीं, अदरवाइज इट विल बी बर्न्ड। सो टैप को हम स्प्रिट स्वाब में करके उसको जला देते हैं, क्योंकि टैप के माउथ में नोजल्स में जो भी बैक्टीरिया हो वो उतने मर जाए। उसके बाद हम उसको पानी को खोल देते हैं, कम से कम 1 से 2 लीटर पानी को फ्लश कर देते हैं ताकि जो भी बचा हुआ बैक्टीरिया वो निकल जाए। उसके बाद हम उसमें कलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको उसको कल्चर करते हैं। इस टेबल से हम वाटर क्वालिटी निकालते हैं। हम इसमें 3 तरह की ट्यूब लेते हैं 50 ml, एक ट्यूब होती है, 10 ml की 5 होती है, 1 ml की 5 होती है। उसमें हम नंबर ऑफ, उसमें डरहम्स ट्यूब एक होती है वो हम डालते हैं। डरहम्स ट्यूब जो है वो एक छोटी सी ट्यूब होती है जो बड़ी ट्यूब के अंदर उल्टी डालते हैं, और जब उल्टी डालते हैं तो उसके अंदर गैस फॉर्मेशन अगर होता है तो उसकी छोटी वाली ट्यूब में एक बबल बन जाता है। बबल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ गैस, एंड गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कोलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स आर देयर। अगर कोलीफॉर्म होगा तो वो गैस प्रोड्यूस कर देगा। तो उस गैस के जो बबल्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। सपोज 50 ml वाले में एक 50 ml में एक है, एक ट्यूब है, इसमें सपोज एक में एक होगा, मैक्सिमम एक ही होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो नहीं होगा या वो होगा या होगा। 10 ml में 5 ट्यूब्स लेते हैं, इसमें हम काउंट कर लेते हैं। सपोज 3 में था, 2 में नहीं था, तो हम ये 3 काउंट कर लेंगे। अगर 1 में था, 4 में नहीं था, तो हम 1 कर लेंगे। अगर 1 में किसी में भी नहीं है बबल्स आर नॉट फॉर्म इन एनी ऑफ दी 5 टेस्ट ट्यूब्स, सो द काउंट इज 0। सिमिलरली वी हैव 5 ट्यूब्स मेजरिंग 1 ml कैपेसिटी की होती है, 1 ml उसमें पानी लेते हैं, एंड it ranges, the count ranges from 0 to 5, 0 to 5। फिर उनको काउंट कर लेते हैं। इनको काउंट करेंगे, ये यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल नंबर आ जाता है। टोटल हम काउंट कर लेंगे कि कितने हो गए। सपोज इस वाले में 50 ml में bubble is not formed, in 10 ml we are having bubbles in two tubes, in 1 ml not a single tube shows presence of bubble। तो 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया, लेकिन ये 2 इसके काउंट से नहीं है, हाँ इसके काउंट से है। और ये फिर इसका हम इन्फ्रेंस निकालेंगे। इसी तरह से टेबल आगे बढ़ जाती है। फिर ये हम इन्फ्रेंस निकालेंगे। अगर तीनों ट्यूब में किसी में भी नहीं आया, 0 तीनों में 0 हुआ है, द वाटर क्वालिटी इज सेड टू बी एक्सीलेंट। अगर 3 काउंट आया, 1 to 3 आया, सपोज 50 ml में एक भी नहीं आया, 5 में एक आया और उसमें 2 आए 1 ml में, तो 3 हो गया, तो इट इज सेटिस्फैक्टरी। वाटर कैन बी यूज, पानी को हम यूज कर सकते हैं, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई दी ऑल्टरनेटिव सोर्स। कोई अल्टरनेट सोर्स हमको तलाश कर लेना चाहिए
जब तक नहीं मिल रहा तब तक हम पी सकते हैं। कुछ घरेलू जो होम स्मॉल स्केल मेजर्स हैं लाइक बॉइलिंग है, दैट कैन बी यूज। 4 to 10 is suspicious and more than 10 is unsatisfactory. This is the inference and of water quality. Then it should be free from toxic chemical substances. One of the chemical substance is the presence of fluoride. Fluoride normally present होता है and it is called double-edged sword, दो धार की तलवार. If the level is high, it will lead to fluorosis, and if the level is low, it may cause dental caries. And fluoride is a halogen. जो केमिस्ट्री के हैं उनको पता है कि जो हेलोजन वाले ग्रुप है जिसमें फ्लोराइड और क्लोराइड आयोडीन ब्रोमाइड होते हैं, उसी में फ्लोराइड भी होता है. इट इज हाईली रिएक्टिव एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन नेचर. Water with high fluoride content found at the foot of high mountains and areas with geological deposits of marine origin. इसकी बेल्ट है ranging from Syria through Jordan, Egypt, Libya, Algeria, and Morocco to the Rift Valley in Kenya. वहां तक ये जाती है फ्लोराइड की जो बेल्ट है. Abundantly found in minerals such as calcium fluoride. Another belt is stretching from Turkey to Iraq, Iran, Afghanistan to India, and northern Thailand and China. Concentration is highest 95 milligram per liter. इतना है has been recorded in Tanzania. And Rift Valley में it was reported to be 2,800 milligram per liter. In India, an estimated 62 million people, including 6 million children, are affected. In some parts of Rajasthan, I have worked in Alwar, Rajasthan. यहाँ पर फ्लोराइड लेवल हाई है. झारखंड में है, यूपी में कुछ है, फोकस है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, एंड एंडेमिक फोकाई थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर स्पॉट्स हैं जहां पर ये फ्लोराइड लेवल इज हाई. फ्लोरोसिस कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लोराइड इन फ्लोराइड. फ्लोरोसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: डेंटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस, and non-skeletal fluorosis. Dental fluorosis manifestations are visible in teeth. दांतों में होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको. फिर बोन्स में होते हैं, और फिर होते हैं जनरल नॉन स्केलेटल लाइक डिस्पेप्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, वोमिटिंग, जी मचलाना, वो होता है. और डेंटल कैरीज कैसे होती है? व्हेन द फ्लोराइड लेवल इज लो इन वाटर, द एनिमल बिकम softened. Animal become softened. जो एनिमल होती है, एनिमल दांतों के ऊपर की होती है, वो सॉफ्ट होती है. When the child takes sugar, excuse me, just You are not audible, sir. Not audible, सर sir. अनम्यूट हो गए. Yes sir, you are not audible. I'm audible now. Now audible. Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Say again, you are not. Sir, we are not getting your voice, sir.
I think network issue. Now visible? Audible? Yes, sir, audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, Visible sir. and visible. Audible both. तो जब हम खाते हैं, जब फ्लोराइड लेवल कम होता है बच्चों में, बच्चों के दांत में, एनेमल में, तो वो सॉफ्ट हो जाती है। हम जब शुगर खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं और रिंस नहीं करते हैं, रात में सो जाते हैं, तो शुगर इज फर्मेंटेड इनटू एसिड बन जाता है शुगर का, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको फर्मेंट कर देते हैं शुगर को, और एसिड जो है वो दांत को गलाता है। दिस इज डेंटल केयर, कॉजिंग डेंटल केरीज। इसीलिए डबल है, ज्यादा हो तो मुसीबत और कम हो तो मुसीबत। तो कम जब होगा तो डेंटल केरीज हो जाती है, और कोई कीड़ा उड़ा नहीं होता। कीड़े तो वैसे मिलियंस में होते हैं, वो तो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, लेकिन जो सड़क के किनारे निकालते हैं ना कि देखिए कीड़ा निकल गया, वो कुछ नहीं होता है, वो सब ऐसा फ्रॉड होता है। बट डेंटल कैरीज और फिर पेन होता है बच्चे को। So fluoride level in body regulated by excretion. About half of the fluoride in the slit is removed via urine. Urine में excrete हो जाता है 50%. Uptake by calcified tissues, remainder removed with great avidity, hunger by calcified tissue till a steady state is finally reached. जो calcified tissues body के अंदर होता है, उसके अंदर वो absorb होता है, leading to stiffness in the joints, in the muscles. Deposition of fluoride is slightly reversible. थोड़ा सा हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज इरिवर्सिबल। एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट अवे फ्रॉम द excess level of fluoride. Then when the fluoride level is high in water, fluoride toxicity may occur if we take water for longer period. अगर आप लेते हैं तो जैसे बताया हमने, तो डेंटल स्केलेटल और नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस होती है। Chronic intoxication is more common. Fluoride concentrated in hard tissues, bone and teeth show the most obvious effect of fluorosis. Dental fluorosis, intake of excessive amount of fluoride during tooth development result in motile enamel. अभी दिखाऊंगा मैं motile teeth कैसे होता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के दांत पीले होते हैं, दांतों में लाइनिंग पड़ी होती है, तो वो तो इसकी वजह से भी होती है। और एक और दवा पहले आती थी, टेट्रासाइक्लिन या टेरामाइसिन, याद होगा जो लोग थे उनको, जो लोग हैं पुराने उनको पता होगा टेरामाइसिन कैप्सूल। तो वो बच्चों को नहीं देना होता है, लेकिन पहले सब दिया जाता था। तो टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इज डिपॉजिटेड इन टीथ आल्सो, उसकी वजह से भी पीले स्टेन्स, येलो स्टेन्स आते हैं। Characterized by scattered irregular white flecks, mottling mainly involves enamel of permanent teeth. This is the dental fluorosis. Mild, change in color, then deposition of some fluoride or the change in color, visible localized change in color. Then severe, the teeth are damaged, mortal, and this is very severe form of teeth. So leading to due to consumption of water with excess of fluoride or high level of fluoride level. Then skeletal fluorosis, it is a crippling disease. इसमें आदमी मरता नहीं है, बस it is a crippling disease. आदमी becomes, the person is not able to perform his normal activities, daily activities. जो normal daily activities हैं वो करने में उसको प्रॉब्लम है। Limitation of joint movement करने में प्रॉब्लम है। Calcification of ligaments. Ligaments क्या होते हैं? Ligaments होते हैं जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, लिगामेंट्स। और टेंडन जो होता है वो बोन टू बोन को जोड़ता है। तो लिगामेंट्स कैल्सिफाइड होंगे, अगेन देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट कम हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद करने की है, एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बहुत कॉमन होता है आजकल, खासकर फीमेल्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत है। सिंपल थिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, सिंपल क्या है, सबसे आसान है। इन ऑस्टियोआर्थराइटिस
पर्सन इज नॉर्मल इन द मॉर्निंग, सुबह जब उठता है तो उसके जॉइंट्स ठीक होते हैं, बट वंस द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, द पेन स्टार्ट्स, a person is having difficulty in movement once the time passes. इसमें सुबह आदमी सही है, मॉर्निंग में सही है, लेकिन शाम होते होते उसका पेन बढ़ जाएगा. दिस इज ऑस्टियोआर्थराइटिस. इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्वॉल्व्स द larger joints, knee joint, ankle joint, elbow joint, mainly the lower part of the extremities, hip. Or rheumatoid arthritis, it involves the smaller joint like fingers, knuckles, wrist, heel. यहाँ पर उसका rheumatoid arthritis का वो इफेक्ट होता है. In rheumatoid arthritis, person having very stiff joints in the morning. मॉर्निंग में पूरे उंगलियां एकदम अकड़ी रहेंगी, सीधी रहेंगी, उनको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है. बट वन द टाइम पासेस इट रिलैक्स. थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम गुजरेगा, समय बीतेगा, वो मूवमेंट बढ़ता है. वहां पर आदमी शुरू मॉर्निंग में पेन है, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें पेन कम होता है, मूवमेंट बढ़ जाता है. ऑर्थराइटिस में सुबह मॉर्निंग में मूवमेंट है, अच्छा है, पेन नहीं है, लेकिन जैसे टाइम पास होता है तो उसमें. तो सिमिलरली इसमें भी क्रिपलिंग डिजीज है विद लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स. एंडेमिक जेनोवेल्गा में कंडीशन होती है. इसमें जो ये रिस्ट है, ये रिस्ट बोन है, यहाँ पर एक अलग से एक ग्रोथ निकल आती है. स्पाइन टेढ़ा हो सकता है, कॉल्ड पोकर बैक स्पाइन. काइफोसिस देखते हो, लोग झुक के चलने लगते हैं. मोर मेन आर अफेक्टेड. क्यों मेन में क्यों होता है? बिकॉज ऑफ देयर dietary habits, smoking is there, so they are exposed to fluoride more. Crippled between 30 to 50 years में crippled हो गया. This is the economically productive age group है. इसमें आदमी कमाता है to earn livelihood, and the person has become crippled, leading to poor socioeconomic conditions. The person is already belongs to lower socioeconomic group, and again it further worsen. न्यूकमर इन द एंडेमिक एरिया डेवलप सिम्टम विद इन 4 years. अब हम किसी एरिया में ऐसे जाके रहने लगे जहाँ पर फ्लोराइड कंटेंट इज वेरी हाई, एंड वी आर नॉट यूजिंग सेफ वाटर, और वी आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स, वी आर लाइकली टू हैव मैनिफेस्टेशंस विद इन 4 years. न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है बोन्स के अंदर होती है, एक बोन की कैनाल होती है, उसमें होती है. जितने भी बॉडी के जो वेरी प्रीशियस जो ऐसे, तो पूरी बॉडी में हर चीज इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज कम हो जाए तो उसकी कमी होती है, लेकिन जो ऐसे हैं वो केज के अंदर है. जैसे ब्रेन है, ब्रेन को एक स्कल के अंदर है. फिर चेस्ट में आपके लंग्स, लीवर, हार्ट है, ये सब भी केज के अंदर है. सिमिलरली जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, जहाँ से हमारा मूवमेंट रेगुलेट होता है, वो भी एक उसके अंदर है, मोनी केज के अंदर है. तो जब उसमें मैनिफेस्टेशन, जब डिफॉर्मिटीज होती हैं, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस करते हैं, उसकी वजह से हमें पेन स्टार्ट होता है. झंझनाहट, सुई चींटी काट रही है, सेंसेशन होता है बॉडी में, डिफिकल्टी इन यूरिन, पासिंग यूरिन और स्टूल. जैसे जैसे जिस लेवल पे अम्बिलिकल कॉर्ड इज कंप्रेस, द मैनिफेस्टेशंस अपीयर. तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर चेंजेस आने की वजह से न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो जाते हैं. वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. Non-skeletal already been told, gastritis होती है. Anorexia is loss of appetite. Dyspepsia, भूख ना लगना. It can be differentiated between rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, rickets. तो ये सिमिलर कंडीशंस हैं. इससे हमको इनको डिफरेंशिएट करना होगा कि कहीं ये तो नहीं है. ये देखिए, सीवियर फॉर्म ऑफ स्केलेटल फिब्रोसिस. सेफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. उसने एक सेफ लिमिट क्राइटेरिया बना रखा. सेफ व्हेन द लेवल इज लेस देन 1 milligram per liter, marginally contaminated 1.1 to 2.5, and highly contaminated 2.5 to 5. And as a generally we take 0.1 to 0.121 is the safe limit. 0.121, it should be 0.1 milligram per liter to 1 milligram per liter. प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? इन 2 ways. प्रोवाइडिंग सेफ वाटर. अगर हम सेफ वाटर दे दें, अभी हम लोग घर में सेफ वाटर फिल्टर यूज करते हैं. कल ही मैंने अपना फिल्टर चेंज कराया. सो TDS is
23 आज मैंने उसको बुलाया है। TDS हम बहुत खुश होते हैं कि हम एक गांव में गए सर्वे करने यूनिसेफ में, वहां पर एक बाबा जी थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने इस लड़के को 12 साल सिर्फ दूध पिला के पाला है, सिर्फ दूध, इसको मैंने कुछ नहीं दिया। मतलब वो अपने हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा आपने इसका तो बिल्कुल कबाड़ा कर दिया इस बच्चे का, क्योंकि ही नीड्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, एवरीथिंग, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ। अब मिल्क देने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले सब, मतलब उन्होंने उसकी हेल्थ के लिए अच्छा ना करके बुरा काम कर दिया। तो इसी तरह से हम जो TDS हमारा जो कम होता है, हम बहुत खुश होते हैं कि साहब हमारा TDS, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, TDS वो कम हो गया, तो बहुत खुश हो गए। ना खुश होने की बात नहीं है, ये तो बहुत, इट इज ए वेरी सीरियस इश्यू इफ इट इज लेस देन 100। अगर 100 से आप लोग का जो जितना भी RO पी रहे हैं ये सब अराउंड 50-60 होता है, तो उसका एक तरीका है। समटाइम्स तो कहते हैं इससे कम नहीं हो सकता है। अभी तो अब मैंने कल ही चेंज किया तो इट इज 23 है, बट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 month or 2 months इट मे बिकम 50-60, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। तो उसका तरीका यही कि हाँ वी कैन यूज दिस RO वाटर एज वेल एज अदर। लाइक खाना पकाने के लिए RO वाटर को यूज नहीं करना है हम लोग। खाना पकाने में भी खाना तो बॉइल हो रहा है ना, वो तो बॉइलिंग हो गई तो वो सेफ हो गया। तो खाना पकाने का, चाय बनाने का, ये सब हमको टैप वाटर या हैंडपंप का वाटर यूज करना है, और सिर्फ पीने के लिए हम अपना RO यूज करें। अगर हम RO यूज करते हैं तो प्रोवाइडिंग सेफ वाटर अगर हम दे दें उनको थ्रू न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस। कुछ न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस है, पौष्टिक इंटरवेंशंस हैं जिसको हम पोषण से हम कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एरिया सेफ एंड अनसेफ वाटर एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक पूरा एरिया है वहां पर हमने निकाला तो वहां पर वो निकल रहा है हाई कंटेंट ऑफ फ्लोराइड आ रहा है, तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल दी वाटर सोर्सेस इन द विसिनिटी हैव द सेम लेवल, हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड। ये नहीं है। अभी आपका ये है एंड 1 मीटर के दूर पे एक हैंडपंप लगा हुआ है, इट में हैव नॉर्मल लेवल ऑफ फ्लोराइड। क्यों? इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ फ्रॉम वेयर द वाटर इज ड्रॉन, कितना गहराई से पानी आ रहा है इस पे है। एंड जो डीप हैंडपंप्स हैं उनके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डीप हैंडपंप का एडवांटेज ये है कि वाटर इज फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं होते हैं क्योंकि डीप से आ रहा है। शैलो से आएगा तो वाटर, ग्राउंड वाटर इज लाइकली टू बी कंटामिनेटेड विद फीकल मैटर और उस पे आ सकता है। डीप वाले में ये एडवांटेज है, बट डिसएडवांटेजेस इट में कंटेन्स दीज टाइप्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, स्पेशली हैवी मेटल्स, आर्सेनिक हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है। तो ये डीप का एक डिसएडवांटेज है। तो डीप वाटर जहां से लेवल से आ रहा है वो डिसाइड करेगा, वो डिटरमिन करेगा द लेवल ऑफ फ्लोराइड। वाटर फ्रॉम सेफ सोर्सेस कैन बी यूज फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। हमने बता दिया कि हम कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फ्लोराइड के लेवल में, जहाँ फ्लोराइड लेवल हाई है वहां पर हम नॉर्मल वाटर को कुकिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड है ना, जहाँ बैक्टीरिया के चांसेस, जैसे फ्लोराइड लेवल जहाँ पे नहीं है, जो बेल्ट में फ्लोराइड नहीं है वहां पर हम ड्रिंकिंग तो हम RO से करें, लेकिन कुकिंग हम नॉर्मल वाटर से कर सकते हैं टू गेट द एडुकेट अमाउंट ऑफ मिनरल्स। क्योंकि सेफ वाटर जो बहुत ही सॉफ्ट हो गया ना, 23 वाला बहुत ही सॉफ्ट वाटर हो गया, तो सॉफ्ट वाटर इज having the side effect on cardiovascular system. Cardiovascular system पे सॉफ्ट वाटर जो है वो जो वेसल्स हैं उनको, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी कम कर देता है, इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस वहां पर प्लेक्स बन जाते हैं और हार्ट अटैक हो सकता है और माइकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक हो सकता है। फॉर वॉशिंग, बेदिंग, अदर इंडस्ट्रियल यूज अनसेफ वाटर में बी यूज। सोर्सेज शुड बी मार्क्ड एज सेफ एंड अनसेफ विद वार्निंग्स। तो अब जो हैंडपंप है उनको हमको रेड कलर से मार्क कर देना चाहिए कि ये वाला जो है हैविंग हाई लेवल ऑफ फ्लोराइड, इट मींस इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ड्रिंकिंग एंड कुकिंग के लिए इसको यूज नहीं करना है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ना हो। तो कलर से अगर आप उस पर भी लिखेंगे, तो वर्ड्स लिखेंगे, कोई टर्म लिखेंगे, इट मे नॉट बी वेल टेकन अप बाय द जनरल पॉपुलेशन, जो स्पेशली इन रूरल एरियाज जहाँ पढ़े लोग नहीं है, तो लाल रंग से हम उसको पेंट कर देते हैं। हम कोई जरूरत नहीं है कि उसको हम अबेंडन कर दें, उसको छोड़ दें, that this water from this hand pump should not be used. No. It can be used, but we have to identify that this is
The hand pump is having a high level of fluoride level, so it should be used for purposes other than cooking and drinking. Defluorization एक टेक्निक है जिसको नालगोंडा टेक्निक कहते हैं. नालगोंडा इज इन प्लेस इन आंध्र प्रदेश, वहां पर ये बनाई है और IIT कानपुर के साथ उन्होंने बनाई है, जिसके थ्रू हम इस टेक्निक से हम फ्लोराइड लेवल कम करते हैं. ये तो लार्ज स्केल पे हो गया, बट एट अवर होम वी कैन आल्सो reduce the level of fluoride by taking using simple technology. उसके लिए हमें एक कंटेनर लेना है 60 लीटर का कैपेसिटी, उसमें हम फिटकरी डाल देते हैं, उसको मिला देंगे, थोड़ी देर के रख देंगे, LM सोल्यूशन बन जाएगा ऊपर वाला, उसको निकाल लेंगे, दूसरे बर्तन में ले लेंगे और वहां पर उसको 1 घंटे छोड़ देंगे और उसका सुपरनेटेड वाटर जो मिक्स करेंगे पहले 20 मिनट तक खूब, और फिर वो ऊपर का जो वाटर है वो अलग हो जाएगा. इट शुड बी ड्रॉन इनटू ए सेपरेट कंटेनर एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर. और जो नीचे का स्लज है, जो नीचे का जो सेटल डाउन पोर्शन है, इट शुड बी डिस्कार्डेड. तो ऊपर वाले लेवल में फ्लोराइड कम हो जाएगा. न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस लाइक कैल्शियम हम ले सकते हैं. कैल्शियम के लिए हम मिल्क, पीस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्रम स्टिक्स, कस्टर्ड एप्पल. कस्टर्ड एप्पल इज व्हाट वी कॉल इन लोकल लैंग्वेज. हमारे यूपी में क्या कहते हैं कस्टर्ड एप्पल को? एनी आइडिया? Ananas. नो. Ananas. शरीफा. अनानास इज पाइनएप्पल. तो कस्टर्ड एप्पल जो है, शरीफा है, इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग फ्रूट्स. उसमें कैल्शियम, देखो नेचर ने ऐसा बनाया ना, सारे फ्रूट्स को सीजनल है, हर सीजन में आपको सब चीज मिलता रहता है. आम है, फुल ऑफ विटामिन है, जाड़े में आम खाइए, गर्मी में आम खाइए, और जाड़े में कैरेट खाइए, गाजर खाइए. तो रोटेशन है. तो सीजनल फ्रूट्स वी शुड टेक सीजनल फ्रूट्स. उसका एडवांटेज है सीजनल फ्रूट का. सीजनल फ्रूट क्या है? फ्रेशली है. अभी आप जाइए 5 स्टार होटल में, अभी आपको वाटरमेलन, तरबूज मिल जाएगा. बस ये क्या होगा कि ये 4 महीने पुराने प्रिजर्वेटिव लगा हुआ होगा, स्टोरेज में होगा. तो देयर इज नो नीड टू टेक, देखो कॉस्टली भी होगा ये. अगर अभी आप मार्केट में तरबूज खरीद के लाएं तो मेरे ख्याल से होगा 50, 60, 70, 80 रुपए किलो मिलेगा. आम दिनों में 15-20 रुपए किलो मिलता है. सिमिलरली एक तो ये कॉस्ट है, अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है. तो हमें सीजनल फ्रूट्स लेने हैं. सीजनल फ्रूट्स है, चीप होते हैं, इजिली अवेलेबल है, इजिली एक्सेसिबल है, इजिली एक्सेप्टेबल है, जो लोकल फ्रूट्स है. अब कोई फ्रूट ऐसा है, जैसे एक आता है ऑस्ट्रेलिया वाला, न्यूजीलैंड वाला, वो क्या कहते हैं उसको, एवोकाडो, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट सब कुछ है, लेकिन हमको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए कि भाई हमारे एरिया का नहीं है. हमको अपने एरिया के फल अच्छे लगते हैं. जो जहाँ पे है तमिलनाडु में, वहाँ जो फ्रूट्स होंगे, दे लाइक द फ्रूट्स ग्रोन इन तमिलनाडु, सिमिलरली इन असम. इन पाइनएप्पल इज कॉमन इन नॉर्थर्न स्टेट जो है. तो हमें सीजनल फ्रूट लेना है. सीजनल फ्रूट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और उनको तो शरीफा जरूर खाएं, स्पेशली फीमेल्स एजेड 45 एंड अबव, जहाँ पर उनको मेनोपॉज हो जाता है. मेनोपॉज इज मेंसेस बंद हो जाते हैं, वहाँ पर कैल्शियम की कमी होने लगती है. तो कैल्शियम को कम करने के लिए आप रूटीन में तो मिल्क प्रोडक्ट्स लें, लेकिन साथ में सीजनल फ्रूट्स में कस्टर्ड एप्पल जरूर खाएं. नवंबर दिसंबर में अवेलेबल होगा, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होगा. तो ड्रम स्टिक इलाहाबाद के आगे ड्रम स्टिक ज्यादा खाते हैं, जॉइंट पेन के लिए भी कहते हैं. तो adequate intake of calcium should be maintained. Vitamin C is having many advantages. It enhances the absorption of iron in the body. चाय पीने से खून की कमी होती है, इसलिए लोगों ने नींबू की चाय रिकमेंड करी है कि इससे आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ता है. और विटामिन सी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मेनी न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो फल वाले जूस, रस वाले फल हैं, वो आप लें. विटामिन ई जो नट्स में और अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इनको लें. एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? व्हेन द वेहिकुलर एग्जॉस्ट इज रिलीज इन द एनवायरनमेंट, और जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो ये ऑक्सीडेंट बन जाते हैं. एंड ऑक्सीडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वियर एंड टियर इन द बॉडी. बॉडी में टूट फूट जो होती रहती है नॉर्मल होती रहती है, लेकिन ऑक्सीडेंट्स जो है उसको एग्रीवेट कर देते हैं या एक्सिलरेट कर देते हैं. तो फॉर दिस वी कैन यूज गार्लिक, जिंजर, अनियन, कैरेट, पपाया, गवावा. इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. अमरूद जो है
फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, जरूर खाया करें। अवॉइड ब्लैक रॉक सॉल्ट, काला नमक बहुत ज्यादा नहीं लेना है, लेकिन कहीं कराटे में और कहीं जरूरत होती है तो वो उसको बैलेंस करके लेना है। ब्लैक टी लोग अवॉइड करते हैं, ब्लैक टी जो है मना करते हैं कि ब्लैक टी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम दूध डालते हैं तो दूध से कैल्शियम आता है। कैल्शियम जो है वो एक्ट एज ए चिलेटिंग एजेंट, बहुत से जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं कैल्शियम उससे बाइंड करता है बॉडी में और वो रिलीज होता है फीकल मैटर में और यूरिन में। तो ब्लैक टी का भी है, लेकिन इट इज नॉट कंफर्म वेदर टेकिंग ब्लैक टी इज हार्मफुल और नॉट, लेकिन इसमें हम नींबू डाल दें तो दैट विल बी गुड। टोबैको, बीटल नट्स, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। 30-35 साल पहले मार्केट में हम लोग जब छोटे थे तो फ्लोराइड टूथपेस्ट था, तो हम लोग का एक शौक होता था, हम लोग we feel superior than others because we were using fluoride toothpaste, कि ये बड़े लोग जो है जो अच्छा वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। पहले तो सब ऐसा मंजन यूज करते थे, हम लोग भी करते थे, जो हाथ उंगली से करते थे, लेकिन फिर टूथपेस्ट आ गया फ्लोराइड टूथपेस्ट, बट दिस फ्लोराइड टूथपेस्ट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अभी हमें फ्लोराइड टूथपेस्ट की लेने की जरूरत नहीं है, रिसर्च होती रहती है, अभी आज जो रिसर्च हो रही है कल दूसरी हो जाएगी, परसों तीसरी हो जाएगी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो फ्लोराइड टूथपेस्ट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड। ब्लैक रॉक सॉल्ट क्यों अवॉइड करें सर? काला नमक में फ्लोराइड लेवल होता है, ज्यादा होता है काला नमक में, लेकिन सब चीज आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करके काला नमक का टेस्ट लाने के लिए नॉर्मल सॉल्ट करिए, उसमें डालिए थोड़ा सा काला नमक डालिए, रॉक सॉल्ट डालिए, ब्लैक सॉल्ट जो आता है वो डालिए। अभी आयोडीन सॉल्ट में भी एक लंबा कई घंटे का लेक्चर हो सकता है। सॉल्ट इज जो है हमने एक अपनी लड़ाई जो है वो नमक से जीती है, दांडी मार्च, है ना, आजादी की लड़ाई। तो सॉल्ट इज ऑलवेज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ। सॉल्ट का इंटेक ज्यादा है तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएंगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। सॉल्ट आयोडाइज होना चाहिए, आयोडीनेटेड होना चाहिए। अब वी आर नॉट यूजिंग द टर्म आयोडाइज, iodinated water. Iodize, when the potassium iodide was used, Ki was used. Now we are using KiO3, potassium iodide. Why we are using potassium iodide? Because the potassium iodide is more stable and it resists the adverse environmental conditions. Iodide जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है। हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि हम उसको खुले डिब्बे में रखते हैं, पैकेट खोल के ऐसे चूल्हे के ऊपर पीछे रख देते हैं गाँव वगैरह में। तो शुड बी स्टोर्ड इन द एयरटाइट कंटेनर। यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट में, रेलवे में फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस है। सबसे पहले आर्मी जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस जाएंगे, एंड द सेकंड प्रायोरिटी इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। इतना इंपॉर्टेंट है आयोडाइज्ड सॉल्ट का ट्रांसपोर्टेशन कि इट इज सेकंड प्रायोरिटी इन रेलवे। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, तो आयोडाइजेटेड सॉल्ट अभी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो उससे भी उसको डालें नॉर्मल उसमें खाने में, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा ये ब्लैक सॉल्ट जो है, रॉक सॉल्ट जो है वो उसमें डाल सकते हैं। सेकेंड इज व्हाट अबाउट सेंधा नमक सर? ये आजकल कंसेप्ट आ गया, कहीं पर ठीक है कि नहीं? ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, हाँ ले सकते हैं, इसलिए कि मतलब सेंधा नमक तो खाते तो कम है, लेकिन वैसे और उसके पर्पस के लिए, सिकाई के लिए, इन सब के लिए ज्यादा यूज होता है, तो ले सकते हैं। लेकिन वही है 5 मिलीग्राम, लेस देन 5 ग्राम हमें लेना है सॉल्ट का। और उसको मेजर कैसे करेंगे? हम एक पैकेट लेके आए घर में, पैकेट लेके आते हैं 1 किलो का, हम डेट नोट कर लें, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फैमिली, कब तक वो चला, पर डे निकल आएगा, पर डे डिवाइड बाई नंबर ऑफ पीपल, मोर और लेस एक आपको दे देगा कि पर डे पर पर्सन कितना इंटेक है। तो शुड नॉट बी मोर देन 5। उसके लिए हमें जो एक्सेस सॉल्ट इंटेक कैसे कम करेंगे? वी शुड अवॉइड द सॉल्ट इंटेक फ्रॉम आउटसाइड। जो समोसा, पापड़, अचार, इन सब में सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट हम लेते हैं। अच्छा, सर्वे करते हैं हम लोग, एवरीबडी इन द फैमिली सेइंग दैट वी आर टेकिंग लेस सॉल्ट। सब लोग ये कहते हैं हमारे यहाँ नमक कम खाया जाता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज में हम लोग सर्वे करने जाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज टू लुक एट द डाइनिंग टेबल। अगर डाइनिंग टेबल पे नमक का वो स्प्रिंकलर अलग से रखा हुआ है, then it may be possible that some of the family members they are using this sprinkler। लेकिन जिनको नमक का नॉर्मल टेस्ट लग रहा है तो उनके कहने से कोई फायदा नहीं, वो तो यही कहते रहेंगे हम लोग कम खाते हैं, लेकिन कम नहीं खाते हैं। कम खाना जब होगा जब घर के कुछ मेंबर जो है वो अलग से छुड़क के खाएं, तो ये सर्वे का पार्ट होता है। इसीलिए कहते हैं फैमिली
में जाने से आपको बहुत कुछ मिलता है। फैमिली में जाके आप बहुत कुछ डायग्नोज कर सकते हैं। ओपीडी में आप बैठ के तो सुनी सुनाई आपको कुछ आइडिया नहीं घर में क्या हो रहा है। घर में आप गए, अगर आपने वहां पर देख लिया कि बिल्ली है, एक लेडी थी मेरे जानने वाली, मेरे नोन थे, शी वॉज हैविंग रिकरेंट एबॉर्शंस, मिसकैरेज हो रहे थे उनको बार बार, 6 या 7 बार हो गए, क्योंकि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है इतना कि वो ओपीडी में आपसे फैमिली हिस्ट्री ले, आपके जो विसिनिटी में लोग रह रहे हैं उनकी हिस्ट्री ले, इतना टाइम ही नहीं हो। तो आए गए, इन्वेस्टिगेशन लिखा, और क्योंकि जो लेमैन, जो एक जनरल प्रैक्टिस थी इन द पास्ट, दैट 75% ऑफ डायग्नोसिस इज मेड बाय हिस्ट्री, 75% डायग्नोसिस हिस्ट्री से होती है, 10% बाय एग्जामिनेशन, 85, 10% बाय इन्वेस्टिगेशन एंड 5% remains undiagnosed। 75% डायग्नोसिस बना देंगे हम हिस्ट्री से, अगर हम हिस्ट्री सही से ले लें। नाउ दिस एंड 10% इन्वेस्टिगेशन, नाउ दिस पैटर्न हैज बीन रिवर्स। अब 75% इन्वेस्टिगेशन, 10% हिस्ट्री, वो हिस्ट्री भी 10% नहीं है, और एग्जामिनेशन चलो 10% मान लें, हिस्ट्री तो और भी कम हो गई है। लेकिन अगर हिस्ट्री ले लें हम तो उससे मालूम चल जाएगा कि क्या डिजीज है। तो हिस्ट्री लेने का अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने उनके घर हम गए, तो हमने घर में देखा कि शी वॉज फॉन्ड ऑफ कैट्स, बिल्ली हर वक्त उनके गोद में बैठी रहती थी, उसकी पूंछ भी वो हाथ फेरती थी। एंड कैट्स में क्या होता है, टॉक्सोप्लाज्मा, एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कैट के फीकल मैटर में आता है, उसको वो पूंछ को हाथ पे फेरती होंगी और वही से उसी से हाथ से कुछ खा लेती होंगी, तो टॉक्सोप्लाज्मा के जो एग्स थे वो बॉडी के अंदर जा रहे थे, दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट मिसकैरेज। बिल्ली को हमने बंद करा दिया, बिल्ली से दूर कर दिया, 6 महीने का उनको सारे प्रिकॉशंस बता दिए, ट्रीटमेंट हो गया, और नाउ शी इज हैविंग 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं हमको। तो ये होती है कि हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री ले लें, अगर लेडी को फ्रीक्वेंट एबॉर्शंस हो रहे हैं, मिसकैरेज हो रहे हैं, आपको इतना पूछना है कि आपके घर बिल्ली तो नहीं है। सिमिलरली अगर आप घर में गए और वहाँ तोता पला हुआ है, तो कुछ रेस्पिरेटरी सिटाकोसिस होती है एक बीमारी, वो तोते से होती है, पैरेट से होती है। तो एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो सेकेंड इज आर्सेनिक, arsenic in water, again very serious health issue in some parts of the country. Arsenic is odorless, flavorless and very hard to detect. Arsenic present just about everywhere in small quantities. Arsenic is eventually found in earth's crust in combined forms. Luckily it is found in combined form, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी थोड़ी कम होती है। Generally level of arsenic in groundwater is 1 to 2 microgram per liter, but highest value is reported 12 microgram per liter. India is one of the badly affected countries. Others are Argentina, Bangladesh, China, Chile, Mexico, Thailand, Taiwan, United States. Leading the high level of arsenic present in soil or in earth crust, leading to contamination of groundwater. And it has been reported from West Bengal, Assam, Madhya Pradesh, Eastern Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, and Bihar. This world map is the foci of high level of arsenic, even in some parts of USA and South America, Mongolia, China, India, Bangladesh. First case of arsenic poisoning was reported from West Bengal in 1982. Then a retrospective study was done. Retrospective from effect to cause or in the backward direction. The other is prospective study, like from cause to effect. हम मॉनिटर करेंगे एक स्मोकर को कि ये सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, टोबैको ले रहा है, इसको कितने साल में लंग कैंसर हो रहा है. दिस इज प्रोस्पेक्टिव. इट शुड बी फॉलोड फॉर 10 to 20 years. 10 से 20 साल तक उसको एक वेरी फेमस फ्रीबिंगम हार्ट स्टडी अमेरिका में हुई, जिसके बाद ही ये हुआ कि ये फैक्टर्स जो हैं हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस. हार्ट डिजीजेस जो है इससे होती है. उनको 20 साल तक उनको फॉलो अप किया गया. दिस इज प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट. रेट्रोस्पेक्टिव मींस द इंसिडेंट हैज हैपेंड. जो होना था वो हो चुका. अब हमको पता लगाना है कि ये क्यों हुआ. तो विल गो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. एकदम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और हम देखेंगे कि इसको लंग कैंसर हुआ है
तब उससे हम पूछेंगे कि स्मोकिंग पीता था, स्मोकिंग करता था, सिगरेट पीता था, for how long the person has smoked, for how the frequency, number of cigarette, number of बीड़ी, तो ये retrospective. So retrospective study was carried out and tubes were found to be contaminated with high level. तो पानी ये पता चला कि जो ये लोग पर्टिकुलर एक कुआं था, एरिया था, वहाँ कुएं थे, वहाँ के जो पानी पी रहे थे, they were having suffering from arsenic poisoning. Similarly, जो जॉन स्नो ने किया लंदन में, लंदन एपिडेमिक ऑफ गैस्ट्रो जिस कॉलरा एपिडेमिक में उन्होंने किया, उन्होंने मैपिंग करी, मैपिंग ऑफ द केसेस, लंदन का मैप बनाया, वहां पर मैपिंग करी और वहां पर देखे केसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं. So it was found that a particular the pump was responsible for the spread of cholera in London. So he just put out the handle of that pump. Pump को बंद कर दिया and cholera epidemic was controlled, stopped. Sources: pesticides. We are using arsenic is used in pesticides. It is found in drinking water. In some medications, आयुर्वेदिक में भी अभी भी यूज होते हैं. अभी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उनमें यूज हो रहा है, स्पेशली इन सदर्न पार्ट्स. In Siddha practice in Tamil Nadu, Siddha system of medicine, Ayush है. Ayush, A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, S for Siddha, and H for homeopathy. And it is very interesting to note that the homeopathy in India has the highest number of homeopaths in the world, though it is evolved or generated or developed in Germany, but it is banned in Germany. Homeopathy is not allowed in Germany. Samuel Hahnemann, he developed this system of medicine. तो इंडिया में होम्योपैथी भी है, सभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन में ये आर्सेनिक यूज हो रहा है. टोबैको स्मोक में है, सब पेट्स में पहले होता था, कोल कंबंशन में, स्मॉग में, स्मोक एंड फॉग, जाड़े में जो स्मोक और फॉग मिलके बनता है स्मॉग होता है, उसमें होता है. माइनिंग एंड मेटल मैन्युफैक्चरिंग में, एंड सम सी फूड आल्सो कंटेन हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक. A natural occurring high concentration arsenic in deeper levels of, again, it is an issue of when the water is drawn from deeper layer, deep से जब लेते हैं तो वहां पर आर्सेनिक आता है. उत्तर प्रदेश में बलिया is the worst affected district in उत्तर प्रदेश. Other in West Bengal, Malda, Murshidabad, Nadia, North 24 Pargana, South 24 Pargana, Hooghly, Howrah, and Bardhaman are the affected districts. This is medical geography. The distribution in terms of places where the arsenic poisoning has been reported. Reported from Balia, from Malda, Murshidabad, Nadia. This is distribution of diseases, distribution of health issues or problem according to the places. Again, if the person is taking this water with high level of arsenic, he may develop certain manifestations called arsenicosis. In the beginning, the person is having vomiting, diarrhea, abdominal pain, weakness, and later on the condition is called chronic arsenicalism. It may cause skin lesions, that is dark spots on the body and limbs, peripheral neuropathy, and peripheral vascular disease. Peripheral neuropathy is the involvement of superficial nerves, जो हाथ में स्किन में नर्व्स होती है, चींटी काटने लगती है, सेंसेशन लगता कुछ चल रहा है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. अदर फ्लशिंग ऑफ फेस, मुंह फेस जो है वो लाल हो जाता है. रिस्पिरेटरी डिफिकल्टीज, मिसकैरेज, कंजक्टिवाइटिस, एडिमा ऑफ लेग्स एंड हैंड, स्वेलिंग आ जाती है पैरों पे. डिलेड मैनिफेस्टेशन जो बाद में होते हैं, उसमें अल्सर्स हो सकता है, गैंग्रीन एंड कैंसर ऑफ स्किन, लंग, ब्लैडर. अदर इंक्रीज हेयर लॉस एंड हेडेक. This is the skin manifestation of chronic arsenic poisoning. You see the scars, dark spots, then scars. Then deposition of arsenic. इसीलिए arsenic poisoning जो देते हैं संख्या, जो जब इन्वेस्टिगेशन होता है पोस्टमार्टम के बाद 6 महीने साल भर के बाद भी डेड बॉडी को निकाल लेते हैं, और वहां पर arsenic once it is deposited in the bones, it remains or it is irreversible. वहां पर अगर डिपॉजिट हो गया तो हमेशा रहेगा. इसी तरह से लाइन नेल्स में डिपॉजिट हुआ, देखिए मीज लाइन है, दिस इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ आर्सेनिक. ओरल म्यूकोसा is having flushing, arsenic lesion on hand and the limbs, the
fingers are amputated or destroyed. So the only option is the prevention. There is no specific treatment. We can take general treatment, symptomatic treatment, but no specific treatment is available. So the only option left is the prevention of arsenic poisoning. This is symptomatic treatment like antibiotics lotion on the scars or skin lesions, cancers. If diagnosed very early stage, can be removed, followed by chemotherapy and even radiotherapy. Again, the chemotherapy and radiotherapy is very painful, though the techniques have been advanced, and we have the very good technology available. Those calculation is done nowadays. So, but we have to take chemotherapy and radiotherapy. Government of India has recommended free hospitalization and treatment to the victims of arsenic poisoning. Free laboratory investigations are also available. How much the grave the problem is in Bangladesh? You see, I have been to Dhaka, and you see this the water bottle here. It is mentioned that it is arsenic free. So it indicates, it shows that how grave the situation is in arsenic in Bangladesh as far as arsenic poisoning is concerned. Arsenic free. Several kits are available and developed by with the support of UNICEF. Also used in Bangladesh. Some of the methods available at household level. Arsenic-free water from deep aquifers. Rainwater harvesting is recommended. Pipe water supply from safe and treated sources. Treatment of arsenic-laden water using community treatment plants or household filters. घर में फिल्टर यूज करते हैं, इससे भी हम आर्सेनिक कम कर सकते हैं. एलम फिटकरी जैसे हमने फ्लोराइड में बताया, the same technique can be applied here. ये हम घर पे बना सकते हैं. You see this lady is using 2 buckets. In 1 bucket the water is kept and the alum is mixed in this red bucket, and the supernatant water is drawn to taken to this bucket, so that the lower part, because the tap is fixed at certain height, so then in the lower part the sludge contains high level of arsenic, fluoride, everything. So we have to take the supernatant water. यहाँ से वाटर को लेके, अगर हमारे पास फिल्टर अवेलेबल नहीं है गांव में, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको हम कर सकते हैं. You see, this hand pump is painted red, लाल कलर से कर दिया गया. It shows that it should not be used for drinking and cooking. Used for washing, bathing, or other purposes. Similarly, as health worker, this hand pump has been identified as having high level of arsenic, so she is painting the hand pump with red color. So avoid the confusion, or to ask the people, encourage the people to take this water for domestic purposes other than drinking and cooking. This is a technique you can use. Large scale, it is the responsibility of the Nagar Nigam, Jal Nigam, or municipality. Treatment of acute arsenic poisoning with medicinal quality activated carbon immediately done in hospitals. 2 heaping tablespoon activated charcoal हम खा सकते हैं. In a cup of room temperature, water should be taken as a bolus dose. इससे हमारे बॉडी में जो आर्सेनिक है वो निकल जाएगा. जिस तरह से हम जब बैरियम मील कराते हैं, टेस्ट होता है बैरियम मील, उसके लिए हम रात में चारकोल टैबलेट देते हैं, क्योंकि उससे गैस एब्जॉर्ब होती है और बहुत सी चीजें एब्जॉर्ब करके ये बाहर निकाल देता है, तो आपके इंटेस्टाइन को क्लियर कर देता है. कैसे अवॉइड कर सकते हैं? प्रॉपर एडवांस ओरल चिलेशन, डिटॉक्सिकेशन इज रिक्वायर्ड. ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, बट अवेलेबल हो या ना हो पता नहीं, लेकिन हम व्हाट वी कैन डू इज सिंपल avoid we have to avoid eating foods that contain sulfur. These foods can help eliminate arsenic from your body. Eggs, onion, garlic, beans, legumes we have to take, but similarly vitamin C, vitamin E we have to take, like we have discussed in case of fluoride also. Taking sulfur tablet directly will also help. Sulfur containing amino acids such as cysteine B6 help eliminate arsenic and can prevent
आर्सेनिक पॉइजनिंग, तो हम सल्फर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट, not all about, it is environmental pollution, but I focus on general environmental water pollution, and we took two important chemical substances, fluoride and arsenic. If you have any query or any question, you may ask, please. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. sir. Thank you, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. सर मेरा एक क्वेश्चन था सर. Can I ask one question, sir? सर कैन आई आस्क? One by one, sir. आप बता दीजिए. जो सीजन में जो भी फ्रूट आएगा उसको खूब अच्छे से खाना है. सर जी. Sir, myself, Dr. Daisy from Firoz Gandhi College, Raebareli. सर मुझे एक क्वेश्चन बस यही जानकारी था सर, अगर हम सेंधा नमक को डेली रूटीन में ले रहे हैं तो क्या वो सही नहीं है क्या? सेंधा नमक की गारंटी नहीं कि वो आयोडाइज होगा, उसमें आयोडीन हो सकता है, लेकिन आयोडाइज सॉल्ट लेना हमको. देखिए आयोडाइज सॉल्ट का जो एडवांटेज है, पहले कंफ्यूजन था बहुत. हमने के लिए एक स्टोरी ऑफ पवन भी बनाई थी. हम एक सर्वे में थे, वहां पर एक बच्चा जो क्लास में सबसे अलग दिख रहा था. जी सर. उसके चेहरे पे ग्लो था, एकदम चमक थी. उस पे एक ही उसका फैक्टर जो आ रहा था कि वो आयोडाइज सॉल्ट खा रहा था. आयोडाइज सॉल्ट कैसे खा रहा था? सिंपल है, क्योंकि स्कूल में तो आप मतलब बच्चा तो नहीं बता पाएगा, बस उससे कॉस्ट पूछना पड़ती है कि कितने का नमक, जो बच्चे ही नमक लाते हैं दुकान से, गाँव के, कितने का नमक लाते हैं? उसने कहा हम 10 रुपए का. तब 10 रुपए का मिलता था. कुछ बच्चों ने कहा हम 3 रुपए का लाते हैं. 3 रुपए का मतलब है कि आयोडाइज सॉल्ट है, पैकेट वाला सॉल्ट है, बट आयोडीन कंटेंट उसमें कम है. उस बच्चे ने कहा हम 10 रुपए का. वो एक मैसन, एक राज का मजदूर जो मकान बनाते हैं, उसका बेटा था. उसकी टीचर ने कहा कि सर ये गणित हमसे भी तेज करता है, इतना शार्प था. तो आयोडीन लेने से 13 पॉइंट्स का डिफरेंस है आईक्यू लेवल में. जो अभी जो एरियाज के बच्चे जहाँ के टॉपर निकल रहा है आईएएस में, बिहार के, बैकवर्ड थे पहले, अब आगे निकल गए. क्यों? दे आर टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट. वहां को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आयोडीन मिल रहा है. सेंधा नमक अच्छा है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि उसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ आपको आयोडीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. आयोडाइज सॉल्ट जो होता है वो मार्केट में जो आ रहा है उसमें आयोडीन है, उसमें 15 पार्ट्स पर मिलियन, ppm कहते हैं. 15 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 15 पार्ट्स उसमें आयोडीन होना चाहिए और मिलियन पार्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट होना चाहिए. इतना होना चाहिए. जहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं वहां पर 30 होता है, 30 ppm होना चाहिए, और घर में आपकी प्लेट में 15 होना चाहिए. क्यों इतना डिफरेंस होना चाहिए? क्योंकि आयोडीन जो है इवेपोरेट होता है, बहुत ही वोलेटाइल होता है और जल्दी से उड़ जाता है. इसलिए ये मार्जिन रखा गया कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वी मे लूज 15 ppm ऑफ आयोडीन. तो उसकी वजह से अभी सेंधा नमक के जहाँ एडवांटेज हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं ये श्योर है कि उसमें एडुकेट अमाउंट ऑफ आयोडीन मिलेगा. अब ये बताइए कि अब पहले शादियों में गुलूबंद दिया जाता था, पूरा गला भर के जेवर दिया जाता था. अब एक महंगा भी बहुत हो गया है और वैसे भी अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहले जो गुलूबंद देते थे या जो भरा हुआ, स्टिल इट इज गिवन, इट इज प्रैक्टिस इन हिमाचल और कश्मीर में अभी भी होता है, क्योंकि वहां पर आयोडीन डिफिशिएंसी से घेंगा होता है, ग्वाइटर होता है. यस सर, ग्वाइटर. या ग्वाइटर को छुपाने के लिए वो दिया जाता था. इंडिकेशन ऑफ, Oh, sir, this is very new. सर ये न्यू थिंग है. सर एक क्वेश्चन था सर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था. शादी का टाइम हो गया, क्योंकि मेरी वो जो 14-15 साल में से हमारी जो रिक्वायरमेंट है बढ़ती है और हमारे एनवायरनमेंट में आयोडीन कम है. जब आयोडीन इज डिफिशिएंट इन द एनवायरनमेंट, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ गले में है, वो थायराइड ग्लैंड ट्राइज टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर आयोडीन. जैसे जब ट्रेन में जब जगह भीड़ बहुत होती है तो हम जल्दी से जाके अपना कपड़ा बिछा देंगे, सामान रख देंगे, सब हमारी है, हमारे लोग हैं, भले वो बाद में कोई ना है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत भीड़ है, जितनी जगह घेर पाओ घेर लो. इसी तरह से थायराइड भी अपने को बड़ा करती है, एंड दैट इज द ग्वाइटर. नथिंग इज, इट इज द एनवायरनमेंट ऑफ थायराइड थायराइड ग्लैंड. यस सर. to absorb more and more iodine.
अभी ग्लूकोन अभी ग्वाइटर नहीं हो रहा। पहले हर लेडी के उधर जो गोंडा साइड की बेल्ट है, बहराइच साइड की बेल्ट है, वहां पर हर लेडी के ग्वाइटर होता था। क्यों? कि वहां पर आयोडीन डिफिशिएंसी खतरा जाती थी, फ्लड में ऊपर की लेवल से आयोडीन बह के समंदर में चला गया, समंदर में आयोडीन फुल हो गया। जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको आयोडीन की कमी नहीं होती, जो सी फूड खाते हैं उन्हें नहीं होती, उतना आयोडीन उनको मिलता ही है। तो अभी ग्वाइटर नहीं हो रहा है, इसलिए ग्लूबन अभी हम आधे तोले की चेंज है उससे काम चल जा रहा है, वरना पहले उसको छुपाते थे या ड्रेस ऐसी करते थे कि जिससे ब्लाउज या जंपर या कुछ कॉलर वाला पहनते थे, उसको छुपाना होता था, या दुपट्टा या साड़ी को लपेट के रखते थे। तो अब उसकी जरूरत नहीं है, किसी के ग्वाइटर नहीं हो रहा है। तो कैसे ग्वाइटर खत्म हो गया? इट इज बिकॉज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट। Yes, sir. Sir. Thank you so much, sir. Very nice lecture, sir. Very Sir. Excuse me, sir. Ansari sir. Dr. Amarnath Ansari Singh, sir. West Bengal. अंसारी सर, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है सर। जी जी सेम क्वेश्चन है। जी। रानी जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर। थोड़ा जी। कंफ्यूजन भी है क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है सर कि जी। सिर्फ एक चम्मच, सिर्फ 1 स्पून ऑफ द आयोडीन इज हाँ, रिक्वायर्ड जी। फॉर द होल लाइफ सर। एक चम्मच नहीं, हाँ, एक चम्मच आयोडीन, नॉट नमक, सॉल्ट नहीं। 1 teaspoonful of iodine is required for the lifespan of 70 years। क्योंकि एक दिन हमको सिर्फ आयोडीन चाहिए होता है 150 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम क्या होता है? 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम का 1000वां हिस्सा माइक्रोग्राम। 10⁻6 होता है सर। एक जो पिन है आपकी सेफ्टी पिन की एक आप डॉट रख दें पेपर पे, सेफ्टी पिन हाँ को। सर, मैं ये क्वेश्चन ये पूछा था सर अंसारी जी। इतना आयोडीन चाहिए, लेकिन आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इतना कम चाहिए होता है लेकिन चाहिए होता है आपको, क्योंकि आयोडीन लेकिन सर बात ये उठ रही है सर, बात मुझे समझ में ये आना चाहिए था क्योंकि आज तक जितने भी आयोडाइज्ड साल्ट मार्केट में उपलब्ध हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम तो है ही सर। लेकिन जो नेचुरली जो मिल रहा है जैसे सेंधा नमक है सर, उसमें भी आयोडीन का मतलब मात्रा अच्छी खासी है सर। है। और हाँ, yes, sir. नहीं, वो सर्टेन नहीं कर सकते हैं, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा होगी कहीं कम होगी, ये हो सकता है। लेकिन एक सर कंफ्यूजन और भी था, जैसे सर आपने एक एग्जांपल दिया था बॉय का कि बॉयज हैव टेकन द लार्ज नंबर ऑफ आयोडीन। सर आयोडीन का टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होता है सर, अगर आयोडीन की ज्यादा मात्रा ले सकते हैं तो इट कैन बी फैटल फॉर द ह्यूमन लाइफ। आयोडीन, सिर्फ आयोडीन की टॉक्सिसिटी से मरने के लिए 300 kg ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड। 300 किलो आयोडीन को खा ले तब मरेगा। आयोडीन की टॉक्सिसिटी, आयोडीन टॉक्सिसिटी जब होगी, जो आप बता रहे हैं वो जब होगी जब थायरोटॉक्सिक न्यूड्यूल, किसी के ऑलरेडी एक न्यूड्यूल थायराइड में कोई थायराइड में कोई हेल्थ इश्यू है, थायराइड कुछ न्यूड्यूल है इसके अंदर, वहां पर प्रॉब्लम होगी। अभी थायराइड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं और वो न्यूक्लियर पावर एटॉमिक वॉर अगर हो जाए जिसमें रेडियो एक्टिव आयोडीन उसमें रिलीज हो जाए, रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो जो आयोडाइज्ड सॉल्ट खा रहे हैं उनपे उसका असर वॉर के न्यूक्लियर आयोडीन का, रेडियो एक्टिव आयोडीन का असर कम होगा, इसलिए कि थायराइड ग्लैंड में ऑलरेडी फिल्ड विद नॉर्मल आयोडीन से थायराइड भरी हुई है। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मेरा एक्सक्यूज मी सर, लॉट्स ऑफ फूड्स आर अवेलेबल व्हिच कंटेन आयोडीन सर, जैसे पाइनएप्पल है सर, जितने बेरीज हैं सर, ऑल आर हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ आयोडीन। लेकिन अगर वहां पर सॉइल जो है डिफिशिएंट है आयोडीन में तो नहीं होंगे, उसमें आएगा कहाँ से? सॉइल से तो आएगा, आपके एनवायरनमेंट से आएगा, आपके वाटर से आएगा, जो आप हार्वेस्टिंग में वाटर यूज कर रहे हैं उसमें आएगा। अभी वहां पर पंजाब और हरियाणा में जो सॉल्ट खिला रहे हैं पोल्ट्री को, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट दे रहे हैं उनको। हाँ सर, लेकिन अगर कॉमन लोग की बात की जाए सर, मतलब कॉमन लोग की बात की जाए जो खास करके जैसे कि 90% लोग हैं, हम क्यों आयोडीन लें? बिकॉज ये तो एक मार्केट पॉलिसी हुआ सर कि आयोडीन बेचो और मार्केट में अपना पैसा कमाओ, बिकॉज लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव ऑलरेडी आयोडीन सर। लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने जो पढ़ा है सर, है जहाँ पर फ्लड आ रही है, जहाँ पर डेफिशिएंट है, जहाँ पर आयोडीन की कमी है, वहां पर आपको फूड से नहीं मिलेगा, फूड से नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां पर डेफिशिएंट है, एनवायरनमेंट में नहीं है आयोडीन। Thank you, sir. Sir, one question, sir.
Please. सर गुड आफ्टरनून सर। सर आई नो कि हम जानना चाहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर आपका लो होता है तो हमें क्या करना चाहिए जो है। आप कहाँ से हैं? सर यूपी प्रयागराज। प्रयागराज, जी जी। हाँ बताइए क्या कह रही हैं? सर हम ये कह रहे थे कि अगर बीपी लो या हाई होता है तो हमें क्या करना चाहिए। जनरली लोग कहते हैं बीपी लो हो तो नमक अधिक खाना चाहिए। तो व्हाट सर आई नो, मैं जानना चाहती हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए एक्चुअल में। सबसे पहले तो वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, पानी जितना पीते हैं। आपकी टेबल पे अभी पानी रखा हुआ है? नो सर। नहीं है। देखिए हमारी टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा है, फ्रिज में पानी भरा हुआ है। जी सर है, पानी है। और हाँ, वाटर इंटेक तो पहले। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वाटर लॉस बहुत होता है गर्मियों में, पसीने के थ्रू होता है, सांस के जरिए होता है, जो नजर नहीं आता है। जब वो होता है तो फॉल्ट निकल जाता है। जब फॉल्ट की हो जाएगी तो फिर लो ब्लड प्रेशर होने लगता है। लेकिन लो ब्लड प्रेशर इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा हाई ब्लड प्रेशर है। लो शुगर बहुत बड़ा इशू है, हाई शुगर होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यस सर। हाँ, दोनों में फर्क है। तो आप वाटर इंटेक बढ़ाएं, आप ORS लें। ORS जो है, व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ऐसी में वाटर इंटेक बढ़ाना है आपको। और आपको अगर लो शुगर हो रहा है तो कुछ करना चाहिए, पैर को कुर्सी के ऊपर थोड़ा रखना चाहिए। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं लो ब्लड प्रेशर से, कभी आपको सिंकोप हो सकता है। कूलिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड जो आती है पैरों में, प्रेशर जो आता है दिमाग तक, ब्रेन तक ब्लड नहीं आ पाता है, आपको चक्कर एकदम काला एकदम अंधेरा सा छा जाएगा। और कुछ 1-2 सेकंड के लिए आपको लगेगा कि आप कहाँ हैं, जैसे आप गिर भी पड़ सकते हैं। बहुत से लोग टॉयलेट में, अब तो सब कमोड यूज कर रहे हैं, पहले इंडियन टॉयलेट जो इंडियन वाला जो है उसमें खड़े होते थे, एकदम चक्कर आ जाता था। कुछ लोग कहते हैं टॉयलेट में गिर गए। टॉयलेट में इसीलिए गिर जाते थे लोग, टॉयलेट इसलिए कि वो कूलिंग ऑफ ब्लड होती थी। प्रेशर लो है, वीक है, कमजोर है, और कूलिंग ऑफ, वो अचानक आप खड़े हो गए और आपका सप्लाई जो है हैम्पर्ड हो गया, ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। जब ब्रेन में अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फौरन आपको वीकनेस, चक्कर आएगा और गिर पड़ते हैं, उसमें फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो एक शेर है ना कि चेहरा बता रहा था तुम्हारा हिंदू में, कुछ काम कह रहे थे कुछ खा के मर गया, है ना। वही हाल इसमें है। कहते हैं ना टॉयलेट में जो गिर गए और फ्रैक्चर हो गया। कभी कभी ओल्ड एज में पहले फ्रैक्चर होता है फिर गिरते हैं, क्योंकि बोन्स इतनी ब्रिटिल होती हैं, कैल्शियम और विटामिन बी सब कम हो जाती है, खासकर फीमेल्स में। तो पहले फ्रैक्चर होता है फिर गिरते हैं। और वरना लोग समझते हैं कि गिरने से फ्रैक्चर हो गया। ओल्ड एज में फ्रैक्चर पहले हो जाता है फिर आदमी गिर जाता है। इसी तरह टॉयलेट में जो है सिंकोप होता है तब गिरता है, ना कि गिरने से जो है वो इश्यूज हैं। तो आपको तो बस अपना वाटर इंटेक, बैलेंस डाइट, कहने को तो ये अच्छा लगता है लेकिन कैसे करें ये होता है। उसका तरीका यही है कि आपके पास वाटर बॉटल जरूर होना चाहिए। और पानी आप इसके इंतजार में ना रहें कि कोई पानी आपको पिलाए। हमारे यहाँ भी ऑफिस में भी लोग हैं जो पानी पिलाते हैं, तो कहते हैं जो पानी पिलाता है उसको इस टाइप के ऑस्टियोआर्थराइटिस ये वाले इश्यूज उसको नहीं होते हैं, लेकिन जो पानी पीता है उसको हो जाते हैं, क्योंकि मूवमेंट कम है, बैठे बैठे पीना है। आपको चल के जाना है, पानी अपना पानी भर के लाना है। पानी आप अपने घर से पानी लेके आए। अगर आपको लगता है कि आपके जो जहाँ पर कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर पानी कि आपको डाउट है कि थोड़ा सा फिल्टर जो है वो सही से क्लीन नहीं हो रहा है, उसकी MC नहीं है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। अब पता नहीं आप क्या फैसिलिटी, यहाँ तो हम पर अपनी यूनिवर्सिटी में हम करते रहते हैं, वाटर क्वालिटी करते रहते हैं, हमारी रिसर्च भी चलती रहती है और उनको फीडबैक भी मिलता रहता है। तो और आप कॉफ़ी पिए, कॉफ़ी बताते हैं लोग ब्लड प्रेशर में कॉफ़ी पिए जी। हाई ब्लड प्रेशर में नमक कम करना है। नमक नॉर्मल खाने में कम करना मुश्किल होता है। एक्सेस में आप वही है सलाद बगैर नमक की, अचार, पापड़, समोसा, ये जो एक्स्ट्रा नमक जा रहा है आपका 2 से 3 आप ले रहे हैं, ये अवॉइड करना है। इस जगह आपको फ्रूट्स लेते हैं और सीजनल फ्रूट्स। अभी आजकल जो है वो सेब बताया हुआ है, और अभी नाशपाती है और नागा है, ये सब चीजें हैं, ये आपने और वॉश थैंक यू सो मच सर। Okay, thank you very much. Question है थैंक यू सर। थैंक यू सो Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.
Thank you, sir.